Good morning, friends. In the last lecture, we saw how to construct a triangle, and in practice set 2 and 3, we saw the two construction. Now, in the next type, we have to construct a triangle given two angles and the included side. अब हमें ये थर्ड टाइप का कंस्ट्रक्शन करना है. इसमें हमें क्या क्या मालूम होगा? वी नो टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड, यानी मुझे दो एंगल्स और उनका इंक्लूडेड साइड मालूम है. बराबर है. तो आउट ऑफ दिस 6 एलिमेंट्स, इफ एनी 3 एलिमेंट्स आर गिवन, देन वी कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल. बराबर है. हमने पिछली बार देखा है कि हमें ट्रायंगल में टोटल जो 6 एलिमेंट्स होते हैं उसमें से अगर मुझे कोई भी 3 एलिमेंट्स अगर मालूम है तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो इन द प्रैक्टिस सेट वी सॉ द अबव कंस्ट्रक्शन. नाउ सपोज वी हैव गिवन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल SAT. मुझे ट्रायंगल SAT बनाना है जिसमें एंगल ए का मेजर मुझे दिया है 45 डिग्री, लेंथ ऑफ सेगमेंट AT दिया है मुझे 6.4 और मेजर एंगल T मुझे दिया है 105. सो इन द लास्ट लेक्चर वी सी इफ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल. फर्स्ट वी हैव ड्रॉ अ रफ फिगर. सो सपोज वी ड्रॉ द ट्रायंगल एज, suppose this is a rough figure. Suppose we construct triangle SAT. So in this way we have construct a rough figure. Now in triangle SAT what is given? एंगल A का मेजर मुझे दिया है 45 डिग्री, सेगमेंट AT मुझे मालूम है 6.4 सेंटीमीटर और मेजर एंगल T इज गिवन 105. तो ये तीन एलिमेंट्स मुझे मालूम है. सो सबसे पहले मैंने ये रफ फिगर ड्रॉ कर लिया. देन यूजिंग द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर ट्रायंगल SAT. सो फर्स्ट वी हैव ड्रॉ द बेस ऑफ ट्रायंगल एंड वी ऑब्जर्व दैट द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 80. सो यूजिंग स्केल फर्स्ट वी हैव ड्रॉ द बेस 80 ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर. सो वी हैव plot a point A and we have take the another point T at a distance 6.4 centimeter. So using the scale we have draw segment AT whose length is 6.4 centimeter. And in last lecture we also discussed that draw the rough figure, measure the all given things in the rough figure. Then using scale we have draw segment AT whose length is 6.4 centimeter. Then we have draw a ray at point A whose measure is 45 degree. So take the protractor, the perpendicular it at point A and measure angle A is 45. So the inner number of this protractor 0, 10, 20, 30 and 40. So we have take measure angle A is 40. Then we have make dots. Then using scale draw an array. Draw array which is passing through that indicated points. So this angle is 40 degree. So writes the measure angle A is 40 degree. Then we have given the measure angle T is how many degree? 1, 0 and 5 degree. So we have extend this ray. Then the measure angle T is 105. So take the protractor, put the perpendicular it at T and measure angle T is 105. So I take from left side 0, 1, 2, 10, 30, 40, 50, 90, 100, 105. So in between 100 and 110 we have plot a point. Then take the scale and draw an arc passing through this point. So this is another ray. These both rays are intersect and that point is our point S. Measure angle T is 1, 0 and 5. So in this way we have to construct the triangle SAT whose measure is AT is 6.4, A is 40 degree and measure angle
T is 10 and 5 degree. So suppose this is a ray, suppose this first ray is AB and second ray is suppose TC. These both rays are intersecting in point S and this is a required triangle SAT. So in this way we have to construct a triangle when given two angles and include sides. अब ये जो 80 साइड है इन ये दोनों एंगल में इंक्लूड है, यानी इन दोनों एंगल के बीच वाला जो साइड होता है उसे हम इंक्लूडेड साइड्स बोलते हैं, बराबर है, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। अगर ये तीन एलिमेंट्स आपको मालूम है तो इस तरह से आप ये ट्राइंगल क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी हैव टेक द third type of the construction to construct the triangle given two angles and the included sides। अगर आपको एक साइड दो एंगल्स और उनके बीच वाला साइड अगर मुझे मालूम है तो आप इस तरह से ये पूरा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इन दिस वे द रिमेनिंग एग्जांपल इज द सेम, सो सॉल्व द रिमेनिंग 3 एग्जांपल फ्रॉम द सेम प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देन देयर इज अ लास्ट टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन दैट इज टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब मुझे क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। आप सबको तो मालूम होगा व्हाट इज मीन बाय राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच द मेजर ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल की जिसमें एक एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है ओनली फॉर आवर कन्वीनियंस। सपोज दिस इज अ एनी ट्राइंगल, सपोज we have take the triangle MAN. Now in this triangle if the measure angle A is 90 degree, अगर इस एंगल A का मेजर अगर 90 डिग्री होता है तो इट्स कॉल्ड एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें एक एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम राइट एंगल था। तो इस तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ वी हैव आल्सो नोन दैट द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, बराबर। तो इन दिस फोर्थ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वी हैव गिवन टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल when the hypotenuse and one side is given, बराबर है। So this is a new type of construction. What is given, construct a triangle when hypotenuse and one side is given। तो अब मुझे क्या करना है, इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सो वी हैव टेक द वन एग्जांपल फ्रॉम द प्रैक्टिस नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। नाउ इन दैट प्रैक्टिस सेट वी हैव कंसीडर ट्राइंगल MAN, बराबर है। तो MAN इसमें मुझे क्या क्या मालूम है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। अब इसमें हाइपोटेनियस हु इज हाइपोटेनियस, लेंथ MN, बराबर है। और ये लेंथ MN मुझे कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, बराबर है। तो मुझे ये हाइपोटेनियस का लेंथ मालूम है, बराबर है। वी हैव नो द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड वन साइड, बराबर है। अब विच आर दी वन साइड्स, आइदर MA और MN, बराबर है। अब दो साइड कौन से बच गया, फर्स्ट साइड बचा AM और सेकंड साइड बच गया AN। तो इन दोनों में से आपको एक साइड मालूम है और यहाँ पर इस एग्जांपल में मुझे लेंथ ऑफ सेगमेंट AN कितना मालूम है, 8 सेंटीमीटर, बराबर है। So these are the given things. So have construct triangle MAN when hypotenuse is given 10 centimeter and the one side is given 8 centimeter। तो इस तरह से मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सो सपोज यू हैव कंसिडर दिस इज अ रफ फिगर। नाउ इन रफ फिगर व्हाट इज वी हैव नो, AM इज 8 सेंटीमीटर, MN इज 10 सेंटीमीटर। तो पहले मैंने ये रफ फिगर बना लिया एंड वी हैव मेजर the length AN is 8 and MN is given 10 centimeter and angle A we have already know it is a 90 centimeter. So using instrument we have construct this right angle triangle. So first which segment we have to draw, that is our base. So the base of the triangle is AN. So using scale we have draw base first and whose length is 8 centimeter. So draw MN whose base is AN whose length is 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने ये ट्राइंगल का बेस बना लिया AN। अब मुझे क्या मालूम है, एंगल A का मेजर 90 डिग्री है। सो टेक प्रोटेक्टर एंड मेजर एंगल A। प्रोटेक्टर लेना है और एंगल A कितना मेजर करना है, एग्जैक्टली 90 डिग्री, बराबर है। सो रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ अ रे पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये मैंने
और ये एंगल कितना मालूम है मुझे 90 डिग्री. सो एंगल ए इज 90 डिग्री. सो we have plotted a and n but m is required. So the what is given, the length of mn. यहाँ पर ये जो डायगोनल्स है इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है. तो टेक कंपास एंड मेजर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एज रेडियस. अब आपको क्या करना है 10 सेंटीमीटर रेडियस लेना है इन कंपास. Take a distance 10 centimeter. Then the steel rod is put on point N and draw an arc which intersect our previous ray. तो आपको N एज अ सेंटर लेना है. N एज अ सेंटर का मतलब क्या होता है, ये जो 3 रॉड है ये आपको N पॉइंट पे लेना है. Then the point of intersection is our third point named as N. And then using scale joining the MN and extend it. And so in this way we have construct. So this MN distance is right here is 10 centimeter. So in this way we have draw this right angle triangle. So this is a method. First draw segment AN 8 centimeter. Measure angle A is 90 degree. Using compass take a distance 10 centimeter. N as a center, draw an intersecting arc. The point of intersection is M. And then we have just named these both ray. Suppose the first ray is, suppose it is drawn from A is suppose AB, and second ray are already we have take any name. This is a MN. So in this way we have construct this right angle triangle. तो इस तरह से when the hypotenuse and one side of this right angle triangle is given, then we construct the right angle triangle using given these 3 different things. So in this way, in that topic we have see the 4 different types of the construction of the triangle and the topic is completed. तो इस तरह से ये जो 4 प्रैक्टिस सेट है बराबर है 2, 3, 4 एंड 5, इसमें हमने ये चारों टाइप के कंस्ट्रक्शन कि ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. टोटल एलिमेंट्स होते हैं 6. इसमें से अगर मुझे कोई भी 3 एलिमेंट्स मालूम है देन वी हैव कंस्ट्रक्ट द डिफरेंट कंस्ट्रक्शन. तो इस तरह से आपको ये कंस्ट्रक्शन also solve the remaining example from the same practice set, and in this way we have made the same type of the construction. और ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. आया समझ में? ठीक है.